जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Very nice kirtan. Hare Krishna everyone. So, yeah, so kids can go to the kids class. Maybe kids who are older than like 9-10 years, they can stay here. Yeah, even elder than 8 years can also stay here. It's an interesting topic today. Alright, I'll do the prayers. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्. All right, how is everyone? Good. All right. So, anyone here for the first time? All right. So maybe someone can pass on the mic. So we'll have a small introduction here. So the template for introduction is here: your name, your occupation, and where you belong to, your hometown, and what are your expectations from this session. Yeah. So just a one-liner expectation, whatever you feel like. Yeah. Hare Krishna. My name is Dr. Megha Grover. I am a lecturer by profession, and I take home tuitions also for school kids and MBA, BBA students. And I belong to India, New Delhi. We have just migrated here in January and very new to Point Cook, just 1 month. And expectations, as Sakshi told me, that it's something spiritual. Yeah. So it's always good to attend. It's always good to make your kids a part of it. Correct. And my mother is here from India. She'll introduce herself. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thanks a lot for coming. Welcome. नेम माई सुशीलता ग्रोवर, बाकी सेम है मेरा. Thank you. Welcome, Auntie. All right. You have another your lecturer here, Swati Mataji. Oh, yeah. So she is also PhD. Yes. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. My name is Himja, and I'm here with my family, my husband, and my 3 daughters. Occupation, here, HR. Currently looking for a job. I lost my job 2 months back, but yeah. I belong to Delhi too. Yeah. It's actually not the first time that we have come. We migrated to Australia 2.5 years back. We were in New Zealand before that. And my oldest daughter, who is now going to be 10 soon, she used to go to Hare Krishna school. New Zealand. Yes. Gurukul. There is a Gurukul there. Yes. Oh, so wow. for 2 years she attended there. So she did the schooling over there, not in the normal school, in the proper schooling. Oh, wow. Yes, That's great. we intentionally wanted her to get her into that spiritual environment, because Correct. that was the only way, when you're outside India. Correct. So that was a beautiful time that I saw her chanting those mantras, coming home. She was away from TV and everything, and Nice. I could see she could pass it on to the other child also. Yeah. So I So miss you just all of have to that. teach one child, the eldest one, and then it will pass on. It will make your work easy. Yes. Yeah. So when we were migrating, we definitely wanted to be around the Gurukul again in Australia, but because So of you the can long- treat this as a Gurukul. You Yeah. have kids, there is a Gurukul class going inside. So Absolutely, Prabhuji. yeah, you have That's come to the reason right we are place. here. Yes.
So you are from Point Cook only? I live in Point. Oh, yeah. nice, I nice. got to know through the WhatsApp that there's a this whole satsang that goes on. Oh, So we good. all wanted to come here with our children. Nice. Yeah. So you have your husband here? My husband is Okay. here, Hare Sameer. Krishna. Okay, Sandeep. Okay, yeah, he posts that. Okay, fine. Samir. Sameer. Okay. Sameer. All right. Yeah. Yeah. Yeah, I'm her better half. Name is Samir Diwan. Occupation Wyndham City Council. Oh, nice. I work in local laws. I belong to the same Nagari where Krishna taught the lesson Kurukshetra. Wow, nice. And expectation, just peace of mind, I guess, among good souls, better than sitting at home watching Netflix. Correct. Correct. Yeah, Makes sense. so it's good to be here. Yeah, yeah. As she mentioned, we have 3 kids, so maybe they'll also learn, Correct. good stuff. So that's why Correct. we are here. That's nice. Also Well- live in Point Cook with her. Yeah, good. Thank you. Welcome. Anyone else? Hi, my name is Vishali. I'm here in Australia nearly 14 years. By occupation, I'm working as an assistant nurse in Royal Melbourne Hospital. And in Point Cook, we are living in nearly 4 years. Me and my husband only here. My husband works in IT. Maybe he will be joining next time. Okay, no problem. So this is the first time I'm joining. And expectation is I want to be a social. We have a friends and family, but in Point Cook, very less. So Yeah. it's a good start to become a social. And we don't have family here. So it's, You will have some meaningful relationships here for Yeah, sure. sure. Definitely. Thank you. Yeah, yeah. Welcome. Welcome. Hare Krishna everyone, my name is Disha and I've recently shifted to Australia like 5 months back. I am a student and I'm pursuing Masters of Business Analytics from Deakin University. Deakin University Yeah. in Burwood or Yeah, Geelong? Burwood. Oh, Yeah. nice. And I belong to Gurugram, Haryana, that's in Delhi NCR. And so my expectations from this workshop is like to gain some, knowledge about all of this. It's my first time here. Yeah. And I'm living with my family, my mama mami, in Wyndham Vale. Oh, okay. Yeah. They're with you. Okay, Yeah. nice. In Wyndham Vale. Yeah. All right, all right. Nice. Welcome, welcome. Thank you. हरे कृष्णा और माता जी प्रभु जी। मैं इंडिया से हूँ और जन्म स्थान दिल्ली है, पर 2 साल पहले हम न्यूजीलैंड से मूव हुए। वहाँ पे 13 साल से थी मैं। Oh, wow. और इतनी अच्छी बात है कि मैं डिवोटीज़ के साथ ही वहाँ पे रही हूँ न्यूजीलैंड में, एज अ वर्क भी किया है उनके साथ। कृष्णा की कृपा है कि आज स्टिल तक मैं उनके साथ हूँ, उन्हीं के भक्ति वृक्षा में, और उनके साथ काम भी किया, जॉब भी किया। कौन से भक्ति वृक्षा में जा रहे हैं? JSOD पामस्टर नॉर्थ में है। संजीवन निवास प्रभु जी। ओके, सन्निवास प्रभु। हाँ, या। ओके। सो वो भी आए हुए भी थे। हाँ, अभी आए थे वो, हाँ, राइट। हाँ। हाँ, तो हाँ। उन्हीं के साथ मेरे एज अ फैमिली, और वो कृष्णा मर्सी। नाइस। सो एक चीज़ सीखिए बस कि 5 दिन 6 दिन अपने शरीर के लिए करो, 1 दिन अपनी आत्मा के लिए करो। गुड, रियली गुड। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑलराइट, इधर आ जाओ माता जी, उधर आगे आ जाओ थोड़ी, मेरे को आगे आ जाओ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिनका सवाल पूछो तो उनको बुलाओ। हाँ, अभी हाँ, सवाल पीछे वालों से पूछेंगे आज। ऑलराइट, सो देर आर क्वाइट अ फ्यू न्यू मेंबर्स, सो मैं क्विकली से रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या टॉपिक क्या चल रहा है बेसिकली, राइट। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवत गीता। सो भगवत गीता हम एक्चुअल स्टार्ट करेंगे, बट अभी वी आर जस्ट सेटिंग द फाउंडेशन हियर। सो what we discussed so far is what is the goal of human life, what we want from our life, right? So what we want is happiness. So that we concluded that we want eternal happiness, right? And then we saw the difference between animals and humans. So the animals are doing all the seed activities. So seed ki full form, anyone remembered? Not you. And defending, yeah, sleeping, eating, enjoying and defending. So animals are doing that and humans are also doing the same. So what makes us different from animals is the higher intelligence. We have higher intelligence, and how we can use that higher intelligence? By ABCD. ABCD याद है किसी को?
No, not you. Ability to think. Ability for higher inquiry, right? So intelligence is there in animals as well, but for humans we have higher intelligence where we can inquire what is the purpose of my life, right? And B, bliss, yeah. C, choice, and determination to do all these three things. Then we see what are the blockers क्या हैं हमारे eternal happiness में. So क्या blockers थे? रिलेटिव प्रॉब्लम्स एंड रियल प्रॉब्लम्स. रिलेटिव प्रॉब्लम्स सबकी अलग अलग हैं, राइट? इसकी बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम, हमारी प्रॉब्लम है इनकम टैक्स, राइट? सो दे डोंट मैच, राइट? बट रियल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने? कॉमन टू ऑल, नो वन कैन अवॉइड इट, नो वन wants it, right? So any problem which falls into these three categories is a permanent problem, is a real problem, right? And what were those? Old age, death. So janam mrityu jara vyadhi, we have seen from Bhagavad Gita. Janam mrityu jara vyadhi, dukkha dosh anudarshanam, right? Then we have seen the three miseries, right? Three miseries कौन सी थी? बेटा that's a good. So what are the three miseries? Anyone remembers? Caused by other living entities. Abhiraj, please hang on. शांत. So three miseries याद है किसी को? We can remember it by AA, AB and AD. Adhyatmic, Adi Bhautik and Adi Daivik. If it is too hard, we can simply remember miseries caused by our own mind and body. हमारी body में aches होती हैं, right? Body aches and indigestion. So, several problems we have, right? Then miseries caused by our own mind and body and mind. Mind भी हमें miseries देता है ना? थोड़ी सी चीज को extrapolate कर देता है वो. Then Adi Bhautik. प्रभु इधर आ जाओ. Adi Bhautik is miseries caused by other living entities. हमने डिस्कस किया था, उसमें सांस भी आती है, right? Miseries caused by other living entities. And then आध्यात्मिक, Adi Daivik में कौन सी जाती थी? By natural disturbances, isn't it? तो अगर हमें बोल दिया जाए चलो पॉइंट को खाली करो, isn't it? तो अगर कोई और सबब खाली करोगे so that's a news for us. But imagine अगर हमें बोल दिया जाए कि हरिकेन आने वाला है यहाँ पर और अपना सामान पैक करो, एक गाड़ी में जितना आता है पैक करके निकलो यहाँ से. So natural disturbances, miseries caused by natural disturbances, and we have seen हम सब ने earthquake experience किया है, which is Adi Daivik, which is miseries caused by natural disturbances. Then we have seen कि उसके हमारे पास जो रियल प्रॉब्लम्स के हमें साइंटिफिक सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं. कौन कौन से थे, याद है किसी को? एक वो थी एब्रीविएशन SMS, याद है क्या था? सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट करके और सेंस ग्रेटिफिकेशन करके हमें लगता है हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, राइट? M से क्या था? माइंड एंड एनर्जी हीलिंग, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के, लाफ्टर थेरेपी करके, और हमने किसकी डेल कार्नेगी की एग्जांपल देखी थी जिसने बुक लिखी थी, इज़न्ट इट? याद आ रहा है? हाँ, और उसमें हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू मेक फ्रेंड्स, एंड ही जंप फ्रॉम 33rd फ्लोर, खुद ही सुसाइड कर लिया था उसने. और हमारे जो लाफ्टर थेरेपी है मिस्टर कपिल शर्मा, ये भी डिप्रेशन में गए थे, इज़न्ट इट? सो देन थर्ड एस क्या था? सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी. हमें लगता है कि सुपरफिशियली स्पिरिचुअलिटी करके तो वी विल बी हैप्पी. वी डिस्कस दैट एज वेल इन डिटेल. नाउ देन वी केम ऑन टू द परमानेंट सोल्यूशन. परमानेंट सोल्यूशन क्या था? ये याद है किसी को? ये तो याद नहीं होगा बिल्कुल. SAC याद है इसकी एब्रीविएशन? फर्स्ट एस क्या था?
सर्च इन द राइट प्लेस. हमने देखा था ना, दुखाल्यम अशाश्वतम, भगवत गीता में से हमने देखा था 13th चैप्टर में से, कि वी आर लुकिंग द हैप्पीनेस, वी आर लुकिंग द राइट थिंग. हैप्पीनेस ढूंढना कोई गलत बात नहीं है. हम हैप्पीनेस, वी आर लुकिंग द राइट थिंग बट एट द रॉन्ग प्लेस. हमने एक एक की डेफिनेशन देखी थी ना. हिमालय, आलय मीन्स घर. पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में जाके अगर मैं ड्रिंक मांगूंगा तो वो मिलेगी? नहीं मिलेगी. अगर मैं मदिरालय में जाके पुस्तक मांगूंगा, मिलेगी? नहीं मिलेगी. सो सेम वे भगवत गीता में क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान के, दिस प्लेस इज कॉल्ड दुखालयम. दिस इज द प्लेस ऑफ दुख. This is the place of misery. I'm not saying that. Bhagavad Gita is saying that, right? And we are trying to search happiness here. We'll get temporary happiness, no doubt, right? But we'll not get the permanent happiness, eternal happiness here. Then accept reality. Accept reality में हमने क्या देखा था? There are few principles which we'll cover now. Few principles which we need to follow, and like love, compassion, integrity. And I have promised that in every class we'll take small dose of those, right? Just give me a minute. And C is connect with supreme, connect to supreme with love. और हमने इसमें किसकी कौन सी एग्जांपल देखी थी कि हम अपने think of your special one, maybe your child, है ना, आपका बच्चा या आपके पेरेंट्स या कोई भी, या आपका स्पाउस, और उसमें मुझे आप बताओ कि आप कितने, अगर मैं लव को नाप सकूं तो उसमें कितने किलो या कितने लीटर्स प्यार करते हो आप. तो सबने क्या बोला था? इनफाइनाइट. एवरीवन वाज ऑन कंसेंसस ऑन दैट, राइट? मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अपने बच्चे से 1 किलो प्यार करता हूं, इससे मैं 2 किलो करता हूं. नो, इनफाइनाइट. सो अवर हार्ट हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी टू लव, टू रिसीव एंड टू गिव लव. एंड वी कंक्लूडेड दैट नो वन, वी आर ऑल फाइनाइट, राइट? सो ये प्यार हमें फाइनाइट से नहीं मिल सकता. जो फाइनाइट लोग हैं उनसे नहीं मिल सकता. From where we'll get that love? Yes, from infinite person, which is God. Yeah. There were 2 things to say. Take the mic. Take the mic. The unit of inquiry in school, we had a unit of inquiry of how finite resources can cause How finite resources can cause conflict. Yeah, this is the reason of conflict, right? Because all the sources are finite and we people are also finite. How much love we can extract from each other, right? After a point. So imagine how wonderful it would be to love someone who can reciprocate it unlimitedly, isn't it? सोच के देखो कि कोई ऐसा हो जिसको who love you for who you are, right? Without any expectations, and who is without trying to change you, who is not trying to change you to suit his needs, right? So now who is that? That is the Supreme Lord. And then, oops, what happened? Sorry, please give me a minute. Jumped. Sorry. Alright. So last time we stopped here, right? So हम एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको. एक बच्चा एक मेले में गुम हो जाता है, ठीक है? तो उसके बाद वो रो रहा होता है. तो जब वो बच्चा रोता है तो उसके पास एक आदमी आता है. वो बोलता है, बेटा रो मत, ये ले पिज़्ज़ा, बर्गर, उसको खाने को देता है सब कुछ. जो कि क्या था? फर्स्ट एस, SMS का S, सेंस ग्रेटिफिकेशन, गैजेट्स देता है उसको, सब कुछ देता है. वो बच्चा वो लेता है, उससे वो चुप हो जाता है थोड़ी देर तक. फिर उसे याद आता है अपने पापा, दोबारा याद आते हैं उसको. वो फिर रोने लगता है 10 मिनट बाद, isn't it? फिर उसके बाद दूसरा आदमी आता है. वो क्या करता है? उसका माइंड एंड एनर्जी हीलिंग. वो उसको बोलता है कि उसको मोटिवेशनल टॉक्स देता है कि बेटा नहीं, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, राइट? तो वो उसके बाद वो 10 मिनट फिर चुप रहता है. फिर उसको याद आते हैं पापा, फिर वो रोता है. सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. देन तीसरा बंदा आता है उसके पास, वो सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी, राइट? वो उसके लिए यज्ञ, हवन, ये सब करता है.
तो उसके लिए भी थोड़ी देर वो खुश रहता है, फिर वो उसको याद आते हैं पापा, फिर वो रोने लगता है, isn't it? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पापा से मिला दो, सिंपल अनाउंसमेंट करो जाकर, मेले में बच्चा गुम हो गया है, कृपया आप अपने बच्चे को आकर ले जाएं, यहाँ पर खड़ा है। सिंपल, वेरी सिंपल सॉल्यूशन, isn't it? So our situation is exactly like that lost child, right? We are the lost child of the billionaire parents, and what we can do is simply if we connect to the Lord, ये सब SMS की हमें ज़रूरत नहीं है, ये जो आर्टिफिशियल, ये जो टेम्परेरी हैप्पीनेस जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम अपने परमपिता से मिल जाएं। बिकॉज जैसे कि हमने एस्टेब्लिश किया कि वो जो लव है, वो जो इनफाइनाइट लव है, वो हमें सुप्रीम लॉर्ड ही दे सकते हैं। हम सीख कर रहे हैं आपस में, which is fine as well, but that will only give us temporary happiness, not the permanent eternal happiness, right? So for that we have to revive our eternal relationship which we have lost. हम यहाँ पर आ गए हैं उनको छोड़कर, तो वो वापस हमें वो रिवाइव करेंगे जब हम वो रिलेशनशिप, then we will be eternally truly happy, right? So now the question is does even जिसको हम सीख कर रहे हैं, क्या ऐसा सुप्रीम फादर एग्जिस्ट भी करता है? Does even God exist? Right? So this is the topic for today, right? Yes. I have two things to say. So do it. So the people who are giving the things and the people are Maya, right? And if the material world is Dukhalim Shashvatam, is the spiritual world Sukhalim Shashvatam? Yes. Spiritual world is exactly opposite. In Bhagavad Gita, chapter number 15, it is given that this world is the perverted reflection of the spiritual world. Perverted reflection means उल्टा, जैसे एक पेड़ है, अगर उसकी लेक में आप देखो, उसकी रिफ्लेक्शन उल्टी दिखती है. So we'll come to that. Alright, so before going to today's topic, I'm going to introduce one more, I would say, section wherein we'll share our realizations, right? Anyone wants to share, because it's been 5 weeks, although हमने कुछ medicine अभी खाई नहीं है, अभी तो we just touched the tip of the iceberg, not even tip, right? So anyone wants to share anything, any realization so far, so they can share. Don't hesitate. It's a very closed spiritual family you can consider, right? Very close knit, right? So क्योंकि कुछ एक लोगों ने they shared it, and yes Mataji, please can you pass on the mic, Abhiraj? मैंने ये देखा है कि अब किसी चीज़ को पाने के लिए ना हम सोच लेते हैं, पर जब अगर हमें उसको करना है ना तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि वो हमें चाहिए। तो जब मैंने भक्ति वृक्षा में जाना शुरू किया, सब किया, तो सबसे पहले तो मैं सच बताऊँ, वहाँ पे प्रसाद खाने ही जाती थी। मुझे प्रसाद ही अच्छा लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा लगता था, पता नहीं क्यों। तो प्रसाद के लिए तो आज भी मुझे कृष्णा का मुझे तो मैं मांग के खाती हूँ, सीरियसली तो खाती हूँ। तो वहाँ पे जाके मैं खाती थी, वेजिटेरियन तो पहले से थी, तो बट जाने के बाद भी कुछ अनियन गार्लिक खा लिया, ऐसे हो जाता था। बट सडनली जाती गई, अचानक से ही मेरा जो खाने का अनियन गार्लिक का था वो छूट गया, आराम से छूट गया। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि कुछ होता है कि अरे आप कैसे खाओगे क्या, क्योंकि मैं चैट भी करती हूँ, थोड़ा जितना कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। आप एक जगह को छोड़ के फिर वो माहौल भी नहीं मिलता। न्यूजीलैंड थोड़ा शांत है, ये थोड़ा भागम भाग वाली कंट्री है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने अपने अंदर बहुत वो स्टिल है, मुझे मेरा एंगर नहीं जाता, मतलब मेरा it will go Mataji, slowly it will go, everything will go, just wait, just keep coming to this workshop, this all these anarthas will go. मैं बस ये हनुमान जी से भी बोलती हूँ कि मतलब भक्त भी आप जैसा ही हो, और बस एंगर चला जाए तो फिर तो चलो, फिर मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, फिर और भी नहीं पड़ेगा, बस एंगर नहीं जाता, उसी चीज़ के पीछे थोड़ा सा मुझे वर्कआउट करना है। It'll go. Yeah, cool. Thank you माताजी। मैंने मच्छर मारना बंद कर दिए। Wow, amazing. Thank you. Anyone else?
बहुत पॉजिटिव लगता है अभी। गुड। और जब भी खाली टाइम मिलता है तब ऐसे लगता है कि नहीं अब चैंटिंग शुरू कर देते हैं। वाह, मतलब ऑटोमेटिकली आता है, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमेजिंग। और स्ट्रेस बहुत कम लगता है, चल रहा है सब है जो Because we होने know वाला है। that we are in Dukhalayam, we know that Yes. acceptance has come, right? So, वो एक हो गया। और गुस्सा तो अब बहुत ही कम है, ऐसा लगता है क्या फ़ायदा है गुस्सा करके, अब हाँ, वो स्टेज आ गई है ऐसे लग रहा है। very nice. So, very nice. yes, ये पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव लगता है। Good, good. Thank you Mataji for sharing. मैं अब ज़्यादा बात करती हूँ भगवान से। पहले बात करती थी, अब ज़्यादा बात करती हूँ ओपनली। एंड आई एम ट्राइंग माई सेल्फ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मटेरियल वर्ल्ड से मुझे पहले थी नहीं, अब डिटैचमेंट इन द सेंस कि अब देखो फैमिली में हम लोग रह रहे हैं, राइट? कुछ भी बनाव हुआ, उठ पटांग हुई, तो मैं खुद से बात करती हूँ, सामने वाले को मैं एक्सप्रेस करती हूँ और मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। आई एम नॉट आफ्टर दिस वन, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिटैच। Correct. Amazing. Thank you Mataji for sharing. Anyone else? Kapil Prabhu, you want to share? Actually, basically, like every week, 3-4 times we were eating meat. So after coming to the session, I've stopped eating meat. Wow. And also started Bhagavad Gita reading. I was listening always while driving and all, but now I started reading every morning before I go job or work here. Wow. Mataji नहीं आया? आज एक फ्रैक्चर हो गया पैर में, so she needs rest here. At least 2 weeks here. All right. Anyone else? Good. Yeah, you don't have to. I mean, if it is there, then it is okay. Good. So I'll also share mine. Very quick one. So I'm grateful to each one of you. Because of you, I'm able to do this seva, right? We are all able to do this seva, right? And I'm really inspired. Kuch families week 1 से continuously coming. I inspired by you, inspired by Mataji. So many. I can't even take names, right? Because as I told some of you, when I joined this program, this workshop like few years back, I was like, okay, I will come, it's okay. And my mentors and my gurus, Shiksha gurus, they were calling me. I said, oh yeah, I will come next week, I'll come next week. But you guys are so consistent, so punctual, so consistent, that inspired me a lot. Right? And I was fool number 1. Later on I realized that I was a fool by not going there. I was just giving them goli. आज वाइफ की तबीयत खराब है, आज ऑफिस में काम है. Whereas I've seen like Karan Prabhu, I called him, he said he has work, and then somehow he managed in the last moment. And there I called few other people as well. So people are going an extra mile to come, right? Which is very inspiring for me. मुझे तो जैसे वो गाड़ी को धक्का देना पड़ता है ना, ऐसे मुझे धक्का दिया है तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो अभी यहाँ भी क्या ही पहुँचा हूँ, मतलब तो मैं कुछ थोड़ा सा कर पाया हूँ. बट एक क्वालिटी थी मुझ में कि मैंने गाड़ी को धक्का देने दिया. ऑल आई डिड इज आई अलाउड समवन टू पुश मी, वेयर एज यहाँ पर तो आई डोंट सी अ नीड. You guys are on autopilot. You guys are amazing. Thank you very much. All right. So as promised, we'll see one small video. This cereal is delicious. Thank you. Thank you. Well, good morning, folks. The 8:15 has been delayed. The 8:15 has been cancelled. Replacement bus services are available. Thank you, guys. Thank you. I like it back.
driving. उधर जगह है, आप उधर बैठ सकते हो सोफा पे, चेयर भी है। Kids, come here. All right. So, क्या सीखा? Any comments? Always be grateful and thankful. Always be grateful, right? So from morning to night, there are so many things to thank for, to be grateful for, right? But do we? And to whom do we do that? Do we say thanks? No, right? Especially Indians, उसमें थोड़ा वैसे ही कम रहता है, right? We have seen, right? The Aussies and all, they keep saying thank you. For no reason also, sometimes they keep saying, right? But these are some of the things which we can imbibe, right? So these small videos I'll keep showing. So we have seen, right? Accept principles. So there are few principles like integrity, gratefulness, thankfulness, love, compassion. So these are the qualities. These are the qualities that once we imbibe those qualities, it will become easy for us to connect to the Supreme, right? So now whether the Supreme Father exists or not, that is the topic for today, right? Does God exist, and are Vedas myth or the words of God, right? So first we'll start with, why do people believe in God, right? So I'll start with the question, how many of us believe that there is someone called God? Raise your hand. सारी है क्या? कोई आधा? अच्छा, आधा गुड। कोई चाहिए मुझे, कोई दूसरी साइड पे भी चाहिए, नहीं तो सारे एक साइड हो जाएंगे तो फिर। Alright, so I'll tell you one story. एक, सबको हिंदी आती है ना समझ में? हाँ। तो एक बार क्या होता है, एक सेज को, एक साधु महात्मा को, एक साधु को गांव वाले बुलाते हैं अपने गांव में कि आइए महात्मा प्लीज़ आइए, हाथ जोड़ कर बुलाते हैं कि आइए और आके हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए, थोड़े प्रवचन कीजिए, राइट? तो वो जाते हैं वहाँ पर, बड़ी मुश्किल से वो आते हैं, तो दे अरेंज्ड, तो ऐसी सभा होती है, तो उसमें फिर वो बोलते हैं कि वो आके साधु पूछते हैं भगवान में कौन कौन यकीन करता है? तो सब लोग ऐसे हाथ खड़ा करते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर सब लोग करते हो तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, मैं चलता हूँ। वो उठ के चले जाते हैं, राइट? फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं यार ये तो काम ख़राब हो गया, इतनी मुश्किल से उनको लेके आए थे। वो फिर जाते हैं उनके पास, फिर बोलते हैं कि प्रभु जी प्लीज़ आइए एक बार आइए ना। तो फिर वो आते हैं दोबारा। तो इस बार वो पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि हाथ नहीं खड़ा करना है इस बार, क्योंकि वो चला जाता है हाथ खड़ा करो तो फिर दोबारा आता है। तो वो बोलते हैं हाँ कौन, सेम क्वेश्चन पूछता है वो, कौन कौन लोग भगवान में यकीन करता है? तो कोई हाथ नहीं उठाता। कहता जब करते ही नहीं तो मैं क्या करूँगा तुम्हें? वो फिर चला जाता है। कहते हैं यार, फिर वो दोबारा जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा बुलाते हैं। इस बार वो प्लान बनाते हैं कि आधे उठाएंगे आधे नहीं उठाएंगे, ठीक है? फिर वो आता है, वो फिर पूछता है कौन कौन यकीन करता है भगवान में? तो आधों ने हाथ उठाया, आधों ने ऐसे आधा ऐसा थोड़ा सा ऐसा नहीं किया, ठीक है? तो वो कहता है जिन्होंने हाथ उठाया वो उनको समझाएं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। वो फिर चला जाता है, राइट? सो हम सबको यही लगता है, हम सब ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया, उन पे भी आएंगे। पर क्या हमें लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? ये हमें बोला कॉमन, जैसे सब मैक्सिमम 90% लोगों ने हाथ उठाया, तो हमें लगता है यार ये टॉपिक तो डिस्कस करने वाला है ही नहीं, भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन भी कहाँ पूछा जा रहा है। अगर ये क्वेश्चन टेम्पल में पूछा जा रहा है तो यस गॉड एग्जिस्ट। यही क्वेश्चन मैं पब में जाके पूछूंगा, गॉड डजंट एग्जिस्ट, इजंट इट? सो सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से हम बिलीवर्स हैं या नॉन बिलीवर्स बन जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ फेथ इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल फेथ। सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? ये दुनिया क्या है, काम की है। अगर भगवान को मानने से मेरा काम बन रहा है तो मान लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? और अगर
काम अगर मेरा बिना माने बन रहा है तो फिर क्यों मानना है? मेरा काम वैसे ही बन रहा है मेरा। मुझे जैसे प्रभु ने बोला कि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ आराम से घर पे बैठ के, मुझे क्या जरूरत है? तो एंटरटेनमेंट कुछ भी मांगने के लिए अगर मेरे को इजीली इसी वर्ल्ड से ऐसे ही मिल रहा है तो मैं भगवान के पास क्यों जाऊं भाई? Isn't it? तो हम क्या हैं? काइंड ऑफ हमें लगता है कि हम भगवान को मानते हैं, बट हम क्या है? बीच का बंदर, राइट? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो हालत है। स्पेशली आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में तो फिर भी कुछ कुछ कर लेते थे, यहाँ आके तो वो भी गया। Isn't it? तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरे कॉलेज में एक लड़का था, एथीस्ट था वो, तो उसका कॉलेज में इंटरव्यू हुई, 3rd ईयर में प्लेसमेंट हुई, तो वो सबसे मांग रहा था तिलक है मुझे तिलक लगाना है। मैंने कहा तू तेरा तिलक से क्या लिंक है? तू तो भगवान को मानते ही नहीं है। कहता भगवान की बात नहीं है, कहता जो इंटरव्यू का जो पैनल है ना उसमें मैंने देखा वो बंदा तिलक लगा के आया है। तो कहता वो लगा लो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो दिस इज हाउ इट इज, राइट? सो हम तिलक क्यों लगाते हैं? इतनी हम अब अविराज है। ये स्कूल बोलता है कि पापा मेरे तिलक लगा के मुझे जाओ, मेरे को तिलक लगा के जाना है। और मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि बेटा तिलक लगा के जाओ। आई वाज लाइक क्या मम्मी क्यों? लोग देखेंगे कि कहेंगे यार ये क्या है? तो अगर हम करते भी हैं, अगर हम भगवान को मानते भी हैं, वी ट्राई टू हाइड इट, राइट? कि हम सोसाइटी में कैसे लगेंगे कि हम भगवान को मानते हैं हम, राइट? यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, राइट? कि फ्रेंड्स के बीच में कई बार हमें लगता है कि यार ही इज सो बैकवर्ड, इजंट इट? हम कहाँ पहुँच गए, साइंस कहाँ पहुँच गई है, और तुम भगवान को मानते हो भी। तो अगर हम करते भी हैं तब भी हम छुप के करते हैं, हश, इजंट इट? सो दैट इज वाई वी नीड टू नो। अगर हमें नॉलेज होगी कि गॉड एग्जिस्ट करता है, अगर हमारे पूरा फेथ एंड कन्विक्शन हमारा स्ट्रांग होगा, देन वी कैन, हम अविराज की तरह बोल सकें कि हाँ पापा मैं तिलक लगा के जाऊंगा, आई कैन कैरी इट। बोलते हैं ना, आई कैन कैरी इट बिकॉज आई नो दैट ही एग्जिस्ट्स, isn't it? Whereas मैं जब इसके जितना था और या इससे बड़ा भी था तब भी I was scared, I was uncomfortable, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उतना फेथ नहीं था मुझे भगवान में, right? So now you have to tell me, जिन्होंने हाथ रेस किया था वो मुझे बताएं कि भगवान क्यों एग्जिस्ट करता है। जिन्होंने नहीं किया था वो आराम से भी बैठ सकते हैं। Not you. कोई इस दुनिया को चला रहा है, करेक्ट, गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। एनीवन एल्स? नॉट यू। प्रभु बोलने दो इसको। ये सारे वो खोल देगा प्रभु अभी। बेटा एंड में, यू विल गेट अ चांस इन द एंड। So you know the scientists say that the Big Bang created. We'll do it later. अविराज, please, you are, आप वो क्लाइमैक्स अभी नहीं देना ना? हाँ। Anyone, माता जी, you want to say something? Yeah. मुझे लगता है कि मेरे साथ हर रोज एवरी टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि कोई शक्ति है जो काम कर रही है एवरी टाइम, एंड आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड इन गुड टाइम, इन अ बैड टाइम, and I have been noticing and I have been telling my children, my family, my husband that I am feeling it, that some sort of power is working not only for me, it's for everyone. For everyone. We have Although to you start can't see, noticing. right? Yes, we have to just start noticing. Once we accept it. So you experience, and दो आंसर आए हैं। एक तो you experience the some शक्ति is there, and the other one जैसे माता जी ने कहा कि ऐसे ही नहीं चल रही है क्रिएशन जो है, किसी ने तो सृष्टि चलाई है, कुछ तो है, राइट? यस प्रभु, आई विल कम टू यू माता जी। ग्रीड हमारी मतलब डिमांड होती है ना, हाँ, हमारी डिमांड को पूरी करने के लिए, डिमांड को पूरी करने के लिए, तो वो ग्रीड के थ्रू मान लो कि भी भगवान है। गुड। एनीवन एल्स? यस। One is your realization basically. ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है दैट हम जनरली सबके साथ ही होता है, भगवान ये दे दो। भगवान कौन है नहीं पता। आप भगवान के नाम से बोलो, कृष्ण के नाम से बोलो, गुरु जी के नाम से बोलो, किसी भी नाम से बोलो,
इट्स अ पावर बेसिकली कि कुछ तो है, तो हम उनको अपना यूनिवर्स में वाइब्रेशंस भेजते हैं कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और वो उस समय नहीं होता है. फॉर इंस्टेंस नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ, एंड वी गेट डिसअपॉइंटेड. हम वो दुखालय में सो कॉल्ड घुस जाते हैं. एंड देन जो होता है उसके बाद देन वी रियलाइज कि भगवान ने कुछ अच्छा सोचा था हमारे लिए, तो ये हुआ. एंड देन वी स्टॉप क्रिबिंग एंड एक्सेप्ट व्हाट इज देयर विच इज गुड फॉर अस. तो ये मेरे साथ भी हुआ जब मैं पॉइंट को, यहाँ पे हम लोग हमें शिफ्ट होना था, मैं घर देख रही थी एंड मुझे घर बहुत पसंद आया. आई विल पे एडवांस रेंट बिकॉज वी डोंट हैव एनी रेंटल हिस्ट्री. मतलब मैंने बहुत कुछ कर दिया कि मुझे वो घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, पर मुझे नहीं मिला. सो वी गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड. एक और घर नहीं मिला जो हमें पसंद आया. एंड भगवान ने जो सोचा था इट वॉज वे फॉरवर्ड वेरी गुड, जो हमें घर मिला. और अब हम ये रियलाइज करते हैं कि अगर हमें वो मिला होता तो वी वुड हैव नॉट बीन एबल टू सर्वाइव इन दैट हाउस. एंड वन मोर थिंग, आपने जैसे तिलक की बात करी, माई हस्बैंड ही इज़ नॉट हेयर राइट नाउ, बट वो रोज तिलक लगा के जाते हैं ऑफिस. उनका एक बिलीफ है कि हाँ, मतलब अगर मेरी मदर को भी स्टमक एक भी है, कहीं चोट भी लगी है, ही जस्ट टेल्स माता आप तिलक लगा लो, वहाँ पे ठीक हो जाओगे. सो इट्स अ बिलीव दैट ही हैज. और वो ऑफिस बिना किसी हेजिटेशन के लगा के जाते हैं. वन डे, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, सम ऑस्ट्रेलियन गाय, ही टोल्ड हिम, hey, you have some holy shit here. You have some shit here. So he told, listen, it's not shit, it's my holy thing here. Yeah. So sorry. मेरे को भी बोला ऑफिस में, ऑजी था, उसने बोला you have some paint here. It's not paint. Yeah. Thank you माता जी. Yeah, you wanna say? Yeah, उधर. Sorry. मैंने अभी अपने बेटे से पूछा कि भगवान है, कहता है. मैंने कहा कहाँ है, कहते पता नहीं पर है. क्योंकि वो सुनता है थोड़ी चीजें. ये बात सच है. मैं तो बहुत मानती हूँ. कह रहे हैं उनके हिलाने से कुछ नहीं हिला. अगर सूरज भी आ रहा है तो वो भी किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है. नेचर है. कोई सेब है, वो किसी साइंटिस्ट ने लाके उसको नहीं लगा दिया है, कुछ नहीं कर दिया. तो ये सब भगवान ने बनाया है. भगवान ने सारी चीज़ें बनाई भी इसलिए कि वो हमारे कर्म के लिए बनाई है. बनाया तो सब कुछ उसी नहीं है, सही और गलत बनाया है. मैं जब न्यूजीलैंड मेरी बेटी के साथ स्कूल छोड़ने जाती थी उसे रास्ते में ना सिगरेट मिलती थी. कई बार लिक्वर स्टोर्स आते थे ना, कि वो कहती थी, मम्मा ये आप कहते हो कि ये गंदे होते हैं, तो ये भगवान ने क्यों बनाए? हम क्यों नहीं खाते ये सारी चीज़ें? आप क्यों हमें बर्थडे पार्टीज में नहीं अलाउड? बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को सिखाना, रुलाते हुए लेके आना पार्टी से कि हम वो नहीं. पर चलो टाइम भी निकाल. बट अगर वो, वही मैं बता रहा हूँ, अगर वो फेथ आएगा ना, अगर वो फेथ एंड कन्विक्शन आएगी, देन इट विल बिकम अ केक वॉक. अब मेरे को नहीं, मुझे बोलना पड़ा था मेरी मम्मी को, पर मुझे इनको नहीं बोलना पड़ा, ये मुझे बोलते हैं. सो इट विल बी द अदर वे अराउंड. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि does God exist, and if it does, then what is the scientific proof? So we'll discuss the scientific proof, but before that we'll discuss why you don't believe, why don't you believe in God? हाँ जी, मैं तो नाम ही हूँ. हाँ जी, अच्छी बात है, मैं भी नाम ही हूँ. इनका जवाब मैं दे दूँ प्रभु जी. पहले ये मुझे ना मैं कैजुअल एजुकेटर हूँ, तो ये अपने बेटे को पिक करने आई थी वहाँ पे. अभी 3-4 दिन से पहले ही इनसे अच्छे से बात हुई है. कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से. तो ये आई मेरे पास, तो कुछ बात हुई फूड की. तो मैंने इनको बोला, कुछ हमारी पिकनिक थी एक्चुअली, तो इन्होंने अपने बच्चे को बोला वो चिप्स का पैकेट उनको दिया जाके. मैंने कहा सॉरी बेटा, मैं नहीं खाऊंगी. इन्होंने बोला आप नहीं? मैंने कहा क्योंकि मैं इंडियन गार्लिक नहीं खाती. कहती अच्छा फिर आप हरे कृष्णा. मैंने ऐसे बोला हाँ. तो इन्होंने मुझे बोला कि फिर आप किसी भक्ति वृक्षा में. मैंने कहा मैं वहरे भी जाती थी, पर मैं ड्राइव नहीं करती. तो मेरे मन में होता है कि मुझे कोई, वही पुशअप वाली बात है ना, मुझे कोई ले जाए तो मैं चली जाऊंगी. इन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं आपको लेके जाऊंगी. तो अब इनसे पूछो कि कैसे नहीं है भगवान, तो ये देखो वहीं पर ही थी. तो मैं तो अपने कंफ्यूजन से दूर करने आई हुई हूँ यहाँ. नहीं गुड, वो हो जाएंगे कंफ्यूजन तो, राइट. हाँ जी, वो तो है. तो मेरे को तो मैं तो सीधी सादी हूँ. मेरे को जो दिखता नहीं वो मैं मानती. राइट. सो नो प्रूफ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एंड सीइंग इज बिलीविंग. अगर मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं कैसे मान जाऊँ? इजंट इट? दूसरा पता नहीं, मन तो मान लेता है. वो मैं कह रही थी ना बीच में हूँ मैं, तो आधा हाथ खड़ा था ना. तो वो कहीं ना कहीं, चाहे बुजुर्ग, चाहे दादी ने, जो भी हमारे पेरेंट्स ने वो डाला हुआ है ना घोट के अंदर,
वो मन में है पर दिमाग में नहीं है। दिमाग में नहीं है, वो दिमाग में, उसके लिए हम हैं। यस। अभी रिसेंटली नीट का आपने देखा होगा, राइट? जो नीट एग्जाम चल रहे हैं हाँ, हाँ, MBBS हाँ, का, हाँ, हाँ, तो बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे सुसाइड भी कर लिया। तो अगर गॉड है तो बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, यू राइट, बैंग ऑन द टारगेट। टू मच ऑफ सफरिंग, राइट? अगर भगवान है तो ये देखो मैंने पहले ही लिखा हुआ था, यू प्रीएम्प्टेड इट। तो दिस वी विल डिस्कस इन अवर 14th or 15th week, right? So but today, not today, but in these today's or maybe in the next session we'll cover these first 2 points, right? So the point is, जो मैंने कहा कि हमें लगता है कि हम भगवान को जानते हैं, लेकिन हम यहाँ भगवान एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे पास वो कन्विक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डू वी हैव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस? वाई सो मेनी रिचुअल्स? वाई वी डू दैट? हम क्यों नारियल क्यों फोड़ते हैं? हम संतरा या उसको सेब को क्यों नहीं फोड़ते जब नई गाड़ी लेके आते हैं? हाँ, we don't have to answer right now, right? Do people who are afraid go to temple? As I said, है ना, कि are you coward? यार क्यों जा रहे हो टेम्पल? क्यों जा रहे हो तुम? Why, right? तो हमें भी लगता है कि यार हाँ वो साइंटिफिक है, आज साइंस। हाँ, तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है क्या? भगवान की तुम आड़ में जा रहे हो, हाँ? भगवान के पीछे छुप रहे हो? Is it? हाँ, भगवान हर जगह है, right? Are there two gods, one creator and one created by us? Is the God who made us completely unknowable to us? हमारी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए है क्या ये भगवान बनाए? कि हमारी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या? हाँ, कहानी है, मिथ है, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, माइथोलॉजी है। वो बोलते हैं हमें माइथोलॉजी कर दिया है। ये किसने किया पता है? ब्रिटिशर्स ने किया है ये हमारे साथ। और ये पीके जो बची खुची कसर थी, वो पीके जैसी मूवीज ने कर दी है। उन्होंने इतने एथीस्ट बनाया ना पीके जैसी मूवीज ने, आई टेल यू। ये क्वेश्चंस, ये सारे पीके के क्वेश्चंस हैं, और उन्होंने क्या किए? क्वेश्चंस किए, आंसर तो किया नहीं उन्होंने। बिना आंसर किए मूवी खत्म करके चले गए वो। उसमें भी आंसर्स नहीं मिले, आंसर्स हुए ही नहीं। वही तो देर अच्छी मूवीज थी, क्वेश्चंस उठाने इज गुड, बट देन यू हैव टू आंसर देम एज वेल, राइट? Is religion made by God man or by God himself? Why we are not born with a religion stamped on us? Why do different religions have different rituals? Are different religions like different companies with their gods as different products? यही बता रहा था ना वो आमिर खान उसमें। Does a stone smeared with colored powder become God? So these are the few questions. अगर हमें इन questions के आंसर नहीं पता तो हम क्या हैं? What are we? We are atheists in the garb of theists. कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं करी भगवान एग्जिस्ट करता है। जो आके बोल दे उस तरफ के हो गए, isn't it? So, but after this or maybe next class, अगर I don't know we'll be able to cover, but we will come to know, right? So, next, now these are the few. यार ये जंप क्यों कर जाता है? I don't know why it jumps. So now coming back to the same question, हम क्यों जाते हैं? I think last class में गरिमा माता जी ने preempted it, right? Why we go to God? हाँ, I'm sharing. I'm coming back to that slide. क्या हो रहा है यार? Sorry. So, yeah. All right. So, these are the 4 common reasons why we believe in God. Right? जैसे someone said, right, कि मैं भगवान से कुछ मांगते हैं, so it's like to fulfill the desires. So इसका एब्रीविएशन क्या है? डस्ट से हम इसे याद रख सकते हैं। ये मैं एब्रीविएशंस क्यों बताता हूँ? ताकि हमें याद रहे ये चीज़ें, है ना, ताकि हमारे अंदर तक जाए ये चीज़ें। कल को कोई पूछे तो एटलीस्ट
कोई पूछे या ना पूछे, एटलीस्ट मेरा फेथ, मेरा खुद का फेथ नहीं हिलना चाहिए कल को, राइट? सो फर्स्ट थिंग इज डिजायर, टू फुलफिल द डिजायर्स, राइट? सो देयर इज समवन हु इज फुलफिलिंग माई डिजायर्स, समवन सेड, राइट? सो डिजायर्स क्या है? हमारा ऑर्डर सप्लायर है। भगवान को हम क्या समझते हैं कि ऑर्डर सप्लायर है, उनको बोल दिया ये लो $10 लीजिए भगवान और मेरी प्रमोशन कर दीजिए या मेरी जॉब लगा दीजिए, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, घर दे दो, यही सब चलता है ना। $10, $20, $50 ये लगाओ और डिजायर फुलफिल करो। दैट इज फर्स्ट रीजन, कॉमन रीजन, राइट? देन इज फियर ऑफ अननोन यू, राइट? मेरा फ्रेंड, उसने इंडिया में घर खरीदा, तो ही इज अगेन एथीस्ट, भगवान को नहीं मानता वो। तो उसने घर खरीदा, 2-3 करोड़ का घर, काफ़ी अच्छा घर खरीदा। उसके बाद उसने सत्यनारायण की पूजा रखवाई। तो मैंने कहा भाई तू तो मानता नहीं है, सत्यनारायण की पूजा क्यों रखवा रहा है तू? कहता यार देख 3 करोड़ का घर लिया है, 1500 रुपये में सत्यनारायण की पूजा हो रही है, वो भी शांत रहेंगे। अगर कुछ है, अगर एग्जिस्ट करता है तो आराम से शांत रहेगा ना, वो आराम से करवाने दो, क्या जाता है, ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा फियर फैक्टर है, यार करवा लेते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, राइट? तो अगर एग्जिस्ट करता है तो खुश हो जाएगा। देन सोशल प्रेशर, आजकल क्या है कि ये इट हैज़ बिकम अ पीयर प्रेशर एज वेल, राइट? कि फेस्टिवल्स पे, यहाँ स्पेशली असोया में है ना, कि फेस्टिवल्स पे वो सज धज के लोग जाते हैं सोशल उसमें, कि आज जन्माष्टमी है या आज दिवाली मनाने जा रहे हैं। ऑल्दो इट इज़ वेरी सुपरफिशियल बट स्टिल पीपल गो, राइट? और एटलीस्ट बर्थडे पे 1 साल में एक बार या एनिवर्सरी पे साल में एक बार भगवान को के दर्शन, थैंक यू हम आ गए हैं, ठीक है, हमारे दर्शन कीजिए आप। Isn't it? So yeah, sometimes people say that, oh, you know, we have started going to Bhagavad Gita classes, yeah, just to show off that yes, we are spiritual kind of. So that social pressure is there. Now, T से क्या है? Followers of traditions, blind following of traditions. जैसा कि आप someone said that, right? Without understanding the essence. तभी हमने I think last कुछ classes में ये rituals and spiritual, right? We were discussing that. So ritual is something which we just blindly follow. हमें उसका पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं हम। ऐसे क्या हुआ, एक लड़की की शादी हो रही थी, तो वहाँ पे एकदम वो मंडप में बैठी है, फेरे लेने लगे हैं, तो एकदम से उसको याद, कहती जाके काली बिल्ली लेके आओ। तो सब ज़्यादा कहते यार काली बिल्ली इस टाइम कैसे मिली? कहती नहीं लेके आओ। तो वो काली बिल्ली कहीं से ढूंढ के लाते हैं, फिर वो काली बिल्ली को अपने पास रखती है, उसके ऊपर टोकरी रखती है, और फिर वो अपनी वो मैरिज सेरेमनी जो है वो कंप्लीट करती है। तो डन। उसके बाद किसी ने उससे पूछा बाद में कि ये क्या है, ये क्यों किया है तुमने? कहती मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी ना, तो तब मेरी मम्मी ने भी ऐसा किया था। तो कहती मैं मम्मी से पूछती हूँ। तो मम्मी के पास जाती है, मम्मी से पूछती है, मम्मी कहती है कि ये मेरी मम्मी की शादी में हुआ था तो मैंने ऐसे किया। तो फिर वो उसकी दादी होती है, तो अपनी दादी से पूछती है, कहती कि क्यों किया ये? कहती यार हमारे घर में ना काली बिल्ली थी, तो यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, वहाँ पर आके वो कुछ गिरती हवन सामग्री को कुछ छेड़ती, तो हमने क्या किया, वो आ गई थी यहाँ पर, हमने उसके ऊपर काली टोकरी दे दी। तेरी मम्मी को लगा ये रिचुअल है, राइट? तो ये ऐसे हमारा अंधविश्वास, इसको बोलते हैं अंधविश्वास। तो ये ऐसे ही रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं एंड वी केप्ट ऑन फॉलोइंग देम, एंड एज अ रिजल्ट जो हमारी आज की जनरेशन है उनका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, राइट? सो दैट इज द रीजन, राइट? टेक द माइक हियर। तो जैसे अगर ये 4 रीजंस हैं बिलीव करने की गॉड के अंदर या भगवान जी के अंदर, तो ये तो फुलफिल तो डिजायर भैया कोई भी कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पति अच्छे से कर देता है मेरी सारी डिजायर। नहीं वही मतलब ये जो लोग ये दीज आर द रीजन जो लोगों को लगता है, जिसलिए कॉमन, दीज आर द कॉमन रीजन व्हिच व्हाई पीपल गो टू, दीज आर नॉट द, आई वुड से, बट these are not, I'm not proving that God exists because of this. Because of this. I'm not saying that. This is why people go to them. Yeah. अब मेरे पास एक क्वेश्चन है इनके लिए कि वो इनके हस्बैंड पूरा कर रहे हैं कि इनकी किस्मत में लिखा हुआ था वो पूरा होना है?
तो वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? वो भगवान ने पहले ही लिखा हुआ था और हस्बैंड वो जरिया बना. करेक्ट. तो ये दिस इज वीक 14 क्वेश्चन कि जिसमें कर्मा विल कम इनटू प्ले, राइट? कि वो कर्मा था कि इनका किस्मत, व्हाट इज किस्मत, दैट विल डिस्कस इन 14th और 15th वीक. किस्मत को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. व्हाट इज डेस्टिनी? कई बार हम काम करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं आते. कई बार हम काम नहीं करते तब भी रिजल्ट्स आ जाते हैं. बिना काम के भी प्रमोशन मिल जाती है और कई बार घिसते रहो तब भी प्रमोशन नहीं मिलती, राइट? सो दिस विल डिस्कस इन डिटेल, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम ये. ऑलराइट, विल मूव. सो नाउ विल डिस्कस द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, राइट? व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ? सी लॉर्ड, ऐसे याद कर सकते हैं हम. सी से क्रिएशन नीड्स अ क्रिएटर, जैसे कि आपने बोला था, राइट? ये क्रिएशन हुई है, ये इट्स नॉट बाय चांस. सो दिस क्रिएशन किसी ने बनाया होगा इसको, राइट? देन एल, लॉज नीड अ लॉ मेकर, ऑर्गेनाइजर एंड डिजाइंस, डिमांड्स एंड अर्जेस, जैसे प्रभु ने बोला था, राइट? सो विल डिस्कस विद सी. विल स्टार्ट विद सी, राइट? हु इन्वेंटेड टेलीफोन? ग्राहम बेल, राइट? हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? James Watt. Who invented telescope? Galileo. Intelligent लोग. Who invented bulb? Thomas Edison. Right? It's very interesting. At the age of 67 की एज में उसकी अपनी फैक्ट्री जल गई थी और बर्न डाउन टू एशेज, और वो सामने खड़ा देख रहा है और स्माइल कर रहा है. और उसकी वाइफ, बच्चे सामने खड़े हैं. उसकी वाइफ बोल रही है, वाई आर यू स्माइलिंग? उसने बोला, कहता कहती आपकी फैक्ट्री जल रही है. कहता कहाँ जल रही है, मेरे को तो नहीं दिख रही. कहता ये सामने जल तो रही है. कहता दीज आर माई मिस्टेक्स, दीज आर ऑल माई मिस्टेक्स विच आर बर्न. एंड देन ही टुक 1000 अटेम्प्ट्स के बाद ही इन्वेंटेड दिस बल्ब, राइट? सो नाउ द पॉइंट इज, इन सबके ये अपने आप आई क्या चीजें? इनको किसी ने बनाया ना, किसी ने इन्वेंट किया ना. ये माइक अपने आप आया, किसी ने बनाया ना. कोई भी चीज़ यहाँ पर है अपने आप अपीयर नहीं होती ना. समवन, कुछ भी, आपका फ़ोन है सैमसंग, कोई तो क्रिएटर है ना उसका. हु इज़ दैट क्रिएटर? एवरीथिंग विच वी आर यूजिंग हैज़ अ क्रिएटर, इजंट इट? सो हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ दिस? इसको किसने इन्वेंट किया? हु इज़ द क्रिएटर? बिग बैंग. That's what. बिल्कुल, मैं वही. हाँ, H2O कहाँ से आया? हाइड्रोजन कहाँ से आई? That's what. Who brought it? Who is the inventor? बिग बैंग ने बनाया कि भगवान ने बनाया? That. हाँ, तो एक्चुअली न्यूटन. न्यूटन को जानते हैं ना सब लोग. क्या बनाया था उसने? लॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना? तो न्यूटन का एक एथीस्ट फ्रेंड था, तो उसके घर आया वो. तो उसने बोला, उसने ना एक मॉडल बनाया सोलर सिस्टम का. और वो ऐसा था मॉडल कि वो ऐसे लीवर चलाता था, तो वो सारे ना प्लैनेट्स दे स्टार्ट रिवॉल्विंग एट देयर पर्टिकुलर स्पीड. मरकरी, वीनस, उसी हिसाब से बिल्कुल रेप्लिका ऑफ सोलर सिस्टम. तो उसका फ्रेंड ने कहा, वाह क्या बनाया यार तूने. तो बोलता है, कहता नहीं मैंने नहीं बनाया. कहता कहाँ से आया? कहता ये बस अपने आप अपीयर हो गया. कहता मैंने नहीं बनाया ये. कहता यार साइंटिफिक बंदा है तो कैसी बातें कर रहा था, तूने नहीं बनाया ऐसे. अब ऐसे कैसे? कहता नो, इट केम आउट ऑफ थिन एयर, जस्ट लाइक दैट. ही सेड कम ऑन, स्टॉप किडिंग. एंड ही सेड नो, ही सेड आई एम सीरियस. ही सेड, देन न्यूटन सेड कि एक छोटा सा मॉडल तू बिलीव नहीं कर रहा है कि ये खुद से बना है, तो ये जो पूरा इतना रियल सोलर सिस्टम है, ये कैसे खुद से बन सकता है? कैसे बिग बैंग से कैसे बन सकता है ये? Isn't it?
तो बिग बैंग थ्योरी क्या है? किसी को पता है बिग बैंग? व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? नॉट यू। बिग बैंग थ्योरी वो क्या बोलते हैं कि एक एट वन पॉइंट, वो बोलते हैं एक कोई पॉइंट है जहां पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, और फिर वहां पर क्या हुआ, एवरीथिंग बिगेन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, और वो बहुत क्योंकि डेंस था तो वो एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, और वो एक्सप्लोड हो गया। और जब वो एक्सप्लोड हुआ एंड एट अ पॉइंट दैट इज फिजिकली अनरियलाइजेबल, मैथमेटिकली इनडिस्क्राइबेबल, ये उसकी डेफिनेशन है थ्योरी, ये जो थ्योरी है, बियॉन्ड ऑल कंसेप्शंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ये वो ब्लास्ट हुआ, और जब ब्लास्ट हुआ तो ये सारा प्लेनेट, सब सोलर सिस्टम, सब कुछ ये बन गए। कैसा लग रहा है ये सुनने में? सुनने में ही साइंटिफिक लग रहा है बहुत, है ना? गॉड से ज़्यादा साइंटिफिक बिग बैंग थ्योरी लग रही है कि एक एक्सप्लोजन से कुछ क्रिएट हो गया, इजंट इट? तो ये जैसे कि मैं बात कर रहा था पहले कि ये सारी चीज़ें ना ब्रिटिशर्स ने किया ये काम। 1835 में लॉर्ड मैकेले आया था, तो उसने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है, स्क्रिप्चर्स में लोगों का बहुत विश्वास है, बहुत यूनिटी है, बहुत ऑनेस्टी है, बहुत फ्लरिश कर रही है ये कंट्री, तो इनको तोड़ पाना तो बहुत मुश्किल है अगर इनका हमने भगवान से विश्वास नहीं उठाया, बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रॉस्पेरस। तो उसने क्या किया, उसने एक बंदा भेजा, मैक्स म्यूलर को भेजा। उसने इंडिया में आके 12 साल तक संस्कृत पढ़ी, उसने संस्कृत पढ़ी, और फिर उसको पता चल गया ओह नाउ इनका यकीन भगवान में है। देन ही मिस इंटरप्रेटेड, तो उसने फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसकी मिस इंटरप्रेट करके उसने डिवाइड एंड रूल, ही स्टार्टेड डिवाइडिंग बेस्ड ऑन द रिलीजन। बहुत ही सिस्टमेटिकली हमारे कल्चर में से भगवान को, बहुत ही सिस्टमेटिकली हमारे कल्चर में से ना भगवान को और रिलीजन को हटाया गया है। हमारी सारी टेक्स्ट बुक्स में बिग बैंग थ्योरी और डार्विन थ्योरी क्यों दिखती है, जो कि इतनी अनसाइंटिफिक है, जो हम अभी देखेंगे, इतनी अनसाइंटिफिक कि एक पॉइंट एक्सप्लोड हुआ और उसने वो क्या कर दिया। और ये देखो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, इसने ये क्या बोल रहा है, इट शुड बी एम्फेसाइज्ड दैट नो थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम हैज येट वन जनरल एक्सेप्टेंस, ऑल इन्वॉल्व हाईली इम्प्रोबेबल एजम्पशंस। ये सारी क्या हैं, एजम्पशंस हैं, तभी इसको थ्योरी बोला, इसको लॉ नहीं बोला, isn't it? So that's not important, right? So साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि जो सृष्टि क्रिएट हुई है वो एक पॉइंट से क्रिएट हुई है, और स्पिरिचुअलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि वो भगवान से हुई है, isn't it? So what they are trying to do is, वो भगवान को एक पॉइंट से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। वो भगवान को चाहते ही नहीं है कि भगवान को माने लोग, वो साइंस को माने। और साइंस में ना क्या होता है, एक्सियम्स, जो थोड़ा पता होगा, एक्सियम्स है ना। एक्सियम्स क्या होते हैं, ट्रुथ्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एनी थ्योरी टू बी साइंस देयर आर टू एक्सियम्स, दो चीज़ों को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, वो उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, तब उसको वो जाके वो साइंटिफिक मानते हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो वो चीज़ फिजिकली डिस्क्राइबेबल होनी चाहिए, सामने कुछ फिजिकल चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, उसकी इक्वेशन होनी चाहिए, मैथमेटिकली वेरीफाइएबल होना चाहिए, तभी वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना। और फिर वो E=mc², लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एनर्जी, वो तभी बनाते हैं ना। तो वो एक मैथमेटिकली वेरीफाइएबल होना चाहिए वो, और दूसरा वो फिजिकली तुम उसको मिक्स करके वो बनाओ, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तभी वो ये दो चीज़ें होनी चाहिए साइंस के होने के लिए। और ये बिग बैंग थ्योरी दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसकी कोई इक्वेशन नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, और ना ही इसका कोई फिजिकली यू कैन डिस्क्राइब कि हाउ इट इज हैपनिंग, राइट। सो जितना फेथ बिग बैंग थ्योरी को मानने के लिए चाहिए, उतना ही फेथ भगवान को मानने के लिए चाहिए फॉर एथीस्ट्स, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, कि चलो मान लो कि ये पॉइंट था भी, तो ये पॉइंट कहाँ से आया, और जहाँ पे वो एक्सप्लोड हुआ वो एक जगह थी ना, वो स्पेस कहाँ से आई, उसका कोई आंसर नहीं है।
राइट। और एक मिनट बाजी बस, और ये अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो किसी चीज़ को एक्सप्लोड करता है तो किसी ने तो एक्सप्लोड किया होगा ना। अब हम दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं तो हम जाके फोड़ते हैं ना, अपने आप तो नहीं वो फूटने लग जाते हैं ना, उसको कोई जाके तो फोड़ता है। अब बॉम्ब ब्लास्ट होता है जब जम्मू कश्मीर में तो कौन लेता है? लश्कर ए तोयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली, isn't it? तो वो बोलते हैं कोई तो जिम्मेदारी ले, वो बिग बैंग किसने किया? Who did that big bang? Isn't it? So, और बहुत सारे डाउट्स हैं। अब सोचो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या करती है, वो एक खाली ज़मीन लेती है और उसके बाद वो उस खाली ज़मीन पे क्या करती है, ब्लास्ट करती है, और नेक्स्ट डे वहाँ पर 100 माले की 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। और उस कंपनी का नाम क्या है? बिग बैंग कंपनी। कभी किसी को देखा है कि ब्लास्ट करने के बाद कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो गई हो? ब्लास्ट करने के बाद डिस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन नहीं होती, राइट? हाउ सिली इट इज़, कितनी रिडिकुलस थ्योरी है ये। और लोग इसको, इस पे बुक्स हैं लाइब्रेरी में भी, अभी आज भी लेके आया है डार्विन की थ्योरी पे और ये इसकी थ्योरी पे, बेसलेस, राइट? सोचो ब्लास्ट हुआ और क्या आ गया? रोज आ गया, वाह, और रोज में सुगंध भी है, सब कुछ है। कैन यू थिंक ऑफ ब्लास्ट के बाद रोज खिलता है? यस। जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं या वो लावा जो निकलता है, अर्थक्वेक अब साइंटिस्ट लोग जान लेते हैं कि भैया आने वाला है या कुछ है। तो अब ये भगवान जैसे कि अगर गुजरात में जैसे हुआ था या अर्थक्वेक आता है, या जैसे कि हम बोलते हैं उनको कि भाई नेचुरल डिजास्टर है, भगवान ने किए, ठीक है, बोलते हैं, मतलब कुछ एक इन्वायरमेंटल पे भी डालते हैं कि भाई पोल्यूशन है, ये है, वो है, इसके कारण ये चीज़ें हो गई। बट कुछ चीज़ें भगवान पे भी डाल देंगे, भगवान जी ने किए, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, भगवान जी ने की है। तो पर वो साइंटिस्ट भी आजकल वो देख लेते हैं ना कि कई बार जैसे खाली करवाते हैं ये मतलब प्लेसेस खाली करवाते हैं, तो वो उसका क्या कि भगवान जी, अच्छा पहले साइंटिस्ट को भी वो प्रूफ दे देते हैं कि अच्छा ये होने वाला है। वो क्या है कि जो ऑलरेडी चीज़ें एग्जिस्टेड है ना, उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना परफेक्ट सिस्टम क्रिएट किया हुआ है ना, विल कम टू दैट आंसर बट आई विल गिव इट राइट नाउ। ये डिज़ाइन इतना परफेक्ट है कि ये जो प्लैनेट्स हैं दे आर मूविंग एट सच अ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पे हमेशा मूव करेंगे वो, राइट? तो इतनी ज़्यादा उस चीज़ पे साइंटिस्ट का फेथ है ना कि ये इसी स्पीड पे मूव करेगा, तो उससे वो 1000 साल 100 साल की प्रिडिक्शंस भी कर देते हैं कि आफ्टर 100 years ये मीटियोर्स विल क्रैश हियर। सो व्हाई? बिकॉज दे हैव फेथ कि हाँ ये प्लैनेट अपनी स्पीड इसी स्पीड पे ही घूमेगा, ये इससे ज़्यादा या कम नहीं होगी। तो हु इज डिसाइडिंग दैट स्पीड? वो स्पीड कौन कंट्रोल कर रहा है? वो जो सारी चीज़ें हो रही है, हु इज डूइंग दैट? अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी अगर आप गूगल में जाके लिखोगे ना व्हाट इज ग्रेविटी, उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। आप गूगल कर लेना जाके, उसमें सबसे पहला लिंक आएगा नासा का। नासा इज ट्राइंग टू डिफाइन व्हाट इज ग्रेविटी, एंड उसकी नासा की वेबसाइट पे जाओगे, उन्होंने क्लियरली लिखा है वी डोंट नो व्हाट इज ग्रेविटी। यस, आप गूगल कीजिए, नासा की वेबसाइट पे जाइए, व्हाट इज ग्रेविटी का आंसर नहीं है उनके पास। तो जो अपनी तरफ हाउ ग्रेविटी वर्क्स, वो ग्रेविटी का सिम्टम है। ग्रेविटी मीन्स ऊपर से नीचे चीज आती है, बट व्हाट इज ग्रेविटी दैट दे डोंट नो। वो ग्रेविटी का सिम्टम है कि ऊपर से चीज नीचे गिर जाती है, वो ग्रेविटी है, वो एनीवन कैन डिफाइन, ठीक है? वो न्यूटन ने भी नहीं किया था, न्यूटन से पहले भी सेब गिरते थे ना, सेब पहली बार जैसे चांद पे तो वो भी नहीं हो पाती, वो भी ग्रेविटी डिफरेंट है, वो उनकी ग्रेविटी जैसे डिफरेंट है, सो व्हाट उड़ते रहते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज कि साइंटिस्ट नो नथिंग। ग्रेविटी जैसी सिंपल चीज भी नासा बोल रही है कि उनको नहीं पता क्या है। यू कैन वेरीफाई दैट, राइट? सो एनीथिंग जो भी हम सोच रहे हैं, द पॉइंट हियर इज एनीथिंग विच इज क्रिएटेड हैज अ क्रिएटर, एज सिंपल एज दैट, राइट? स्पीशीज, नाउ कमिंग टू स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? कौन सा गोत्र है हमारा? वानर गोत्र, isn't it? भारद्वाज या कश्यप गोत्र नहीं है हमारा, हमारा वानर गोत्र है। दिस इज व्हाट डार्विन इज सेइंग, isn't it? अत्री गोत्र, कश्यप गोत्र ये नहीं है हमारा, वानर गोत्र से आए हैं हम। डार्विन की थ्योरी अगेन बोगस, एकदम बोगस है। क्या बोल रहा है वो? बड़ी फनी है ये। वो उसने ये तो बताया कि स्पीशीज कैसे इवॉल्व करी हैं, बट स्पीशीज आई कहाँ से हैं, राइट? वो उसने नहीं बताया।
हाउ द न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड. उसने क्या बोला, मछली ऐसी थी ऐसी थी ऐसी, धीरे धीरे वो इंसान बन गई. पानी ऐसे बनी क्या, ऐसे बने हम. जिराफ, जिराफ कहाँ से आया? उन्होंने बोला कि छोटा सा था, शॉर्ट नेक्ड जिराफ था, तो वो मर गया ड्रॉट में, और जो सरवाइव कर पाए वो जो पेड़ से जो कर करके वो पत्ते तोड़ने के लिए, तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, जबकि इसका कोई फॉसिल एविडेंस है ही नहीं कि मीडियम साइज जिराफ थे. कोई कहीं नहीं मिलता, हमेशा से उनको लॉन्ग नेक वाले जिराफ ही मिले हैं. ठीक है, कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है उस चीज़ का. तो अगेन दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड थ्योरीज. और उसके ऊपर बुक्स हैं, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ी हैं. अभी ये विराज उठा के लाया डार्विन, कल ही मैंने देखा, मैं डार्विन की बुक्स पढ़ रहा है यार. क्या पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे? बच्चों के माइंड वीक होते हैं और वही हमने टेक्स्ट बुक्स में डाला है, वही पढ़ के उनको वो लगेगा कि हाँ भाई यही सच है. इजंट इट? ये देखो, इसकी भी ये भी एक थ्योरी है कि फिश थी, फिश धीरे धीरे क्या बनी, एम्फीबियन बने, फिर वो बने, हम सुनते हैं ना ये, फिर बेयर बना, फिर इंसान बन गया. तो फिर वो बोलते हैं कि फिर वेल तो मैमल है, तो वो मैमल कैसे आ गए? वो कहते हैं बेयर फिर पानी में गया, वो वापस वेल बन गया, तो वो मैमल बन गया. ऐसी ऐसी वाहियात थ्योरीज हैं. इसमें एक्चुअली माइक ले लो. कुछ इससे मतलब लोग रिलेट भी ऐसे करते कि मत्स्य अवतार जो हुआ था, हाँ. जो हुआ था, तो मत्स्य अवतार के बाद जो फिश हुए वो भूमि में आ गई, हाँ. और फिर से इवोल्यूशन हो गया. मतलब वो इवोल्यूशन को अवतार से कनेक्ट करके कि उसके बाद मत्स्य हुआ, फिर कूर्मा अवतार हुआ, फिर वरा अवतार हुआ. इसलिए हाँ? वो धरती पानी से निकाल, पानी से, हाँ, वो उसकी अलग है. हाँ, बोलो. I know where gravity came from. Okay, no, you need not tell that. All right. So yeah, you're right, Prabhu. But those are the avatars. But उसकी डिटेल में श्रीमद् भागवतम में एक्सप्लेनेशन है कि क्रिएशन कैसे हुई, स्पीशीज की क्रिएशन कैसे हुई. राइट. बट दीज आर द बोगस फिलोसफीज जो हम देखते आए हैं. राइट. So again, human beings and monkeys simultaneously existed millions of years ago, right? तो ऐसा नहीं है कि, और इसका तो काफ़ी जोक्स भी बने हैं ना कि इंसान बंदर से इंसान बन गए, और कुछ बंदर क्यों फिर रह गए, और अभी भी इंसान कैसे आए जा रहे हैं, और कुछ बंदर कैसे रह गए. Isn't it? तो एक बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, अपने पापा से पूछता है, कहता पापा हम कहाँ से आए हैं? पापा बोलते हैं हम बंदरों से आए हैं. फिर वो अपनी मम्मी के पास जाता है, तो बोलता है, कहता मम्मी हम कहाँ से आए हैं? तो मम्मी कहती है हम भगवान से आए हैं. तो कहता पापा तो कह रहे हैं कि हम बंदर से आए हैं. तो कहती वो उनके खानदान वाले हैं, हमारे खानदान वाले भगवान से आए हैं. राइट. तो ये इन चीज़ों में जोक्स बने हुए हैं. So, who created life? Life किसने क्रिएट की? हाँ. अब साइंस क्या बोलती है? साइंस हैज प्रूव्ड दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. साइंस, किसी भी साइंटिस्ट से आप पूछोगे, बड़े से बड़े साइंटिस्ट से, वो यही बोलेगा कि भगवान नहीं एग्जिस्ट करता है. राइट. तो एक साइंस टीचर ऐसे पढ़ा रही थी, तो उसने अपने बच्चे को नहीं, क्लासरूम में उसने बोला कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय चांस, साइंस हैज प्रूव्ड दैट. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से चांस से हुआ और वो उससे बन गया. तो बच्चे ने वो नोट कर लिया. फिर ये मॉरल एजुकेशन वाली टीचर आई, उसने बोला कि गॉड इज द लविंग क्रिएटर एंड फादर ऑफ ऑल. तो बच्चे ने वो भी नोट कर लिया. नेक्स्ट डे उसका एग्जाम हुआ, उससे पूछा कि बताओ कहाँ से ये लाइफ कहाँ से आई? तो उसने पूछा, कहता मैम पहले ये बता दो कि ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना कि ये मॉरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना. तो मैं उस हिसाब से आंसर दूँ. राइट. सो हमारे बच्चों को भी वी आर कंफ्यूजिंग देम. राइट. सो अब ये बोलते हैं लाइफ कहाँ से आई. हम बोलते हैं ना कि क्लोनिंग कर ली, देखो हमने लाइफ बना दी. बट रियली क्या क्लोनिंग लाइफ है? दे टुक लाइफ, क्लोन किया ना उन्होंने. लाइफ से लाइफ आती है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ.
कुछ केमिकल्स को कंबाइन करके आप लाइफ नहीं बना सकते हो, राइट? ऑल दे डिड इज मिक्स ब्रीडिंग करी है उन्होंने, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेबोरेटरी में हम लाइफ नहीं बना सकते। यहाँ पे PhD हैं दो, बता दीजिए अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं तो। कि क्या कुछ अगर वो कर सकते होते तो डेड बॉडी में वो कुछ केमिकल्स इंजेक्ट कर देते और उसको जिंदा कर देते। दे कैन नॉट डू दैट। create blood. Can't even create blood. They cannot even create blood. Forget about the whole body and all, right? So this is too scientific. I'm not going in detail. अगर पर किसी को डाउट हो तो we can discuss later on. Emotions किसने बनाया? Intelligence, consciousness. It's too scientific. So these are the scientific proof. तो भी थोड़ी boring हो रही है class, right? I can see the restlessness. We'll come to the next one. Law. Every law has a lawmaker. किसी इंसान ने लॉ, जो इंसान लॉ बनाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे ट्रैफिक लॉज हैं, तो ट्रैफिक लॉज किसने बनाए हैं? सम इंटेलिजेंट सिस्टम, राइट? रेड, येलो, ग्रीन ये होती है ना, तो ये किसी ने बनाए हैं एंड समवन इज मॉनिटरिंग इट एज वेल, राइट? सो देयर इज अ लॉ मेकर एंड दैट लॉ मेकर ऑल्सो मेक श्योर के लॉ इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और वो चल भी रहा है, isn't it? He is making sure that the law works. ऐसा नहीं कि मैं कुछ लॉ बनाया मैंने और उसके बाद मैं भाग गया, तो वो लॉ इम्प्लीमेंट होगा? नहीं होगा, isn't it? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, कितने हजारों लोग लगते हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, isn't it? Thousands of people, ताकि वो एयर ट्रैफिक एक दूसरे से टकराए ना, isn't it? और व्हाट अबाउट दीज प्लैनेट्स? ये टकराते हैं? ये तो नहीं टकराते। इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? जो एक प्लेन, छोटे से प्लेन को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, तो ये जो इतने अपने यूनिवर्स में घूम रहे हैं, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? एक व्यक्ति जाता है उसमें, पाकिस्तान PIA में, PIA एयरलाइन है ना, तो पाकिस्तान एयरलाइंस में जाता है, वो PIA है उसका नाम। क्या फुल फॉर्म क्या है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। हाँ, तो वो उसमें जाने लगता है, तो उसको वहाँ पे एयर होस्टेस बोलती है कि PIA, उसको पता नहीं होता क्या है, कहती है प्लीज़ इन्फॉर्म अल्लाह। वो बोलते हैं बिफोर टेकिंग ऑफ प्लीज़ इन्फॉर्म अल्लाह, तो इसलिए PIA बना है। तो ठीक है, फिर वापसी में वो आता है एयर इंडिया से। एयर इंडिया क्या है? AI। तो फिर वो जाके पूछता है, कहता है AI क्या है? तो बोलते हैं ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। तो हम भगवान जब फ्लाइट पकड़ते हैं, वो ऑलरेडी इन्फॉर्म करके पकड़ते हैं, ठीक है? तो एक प्लेन में कितनी टर्बुलेंस होती है? उस प्लेन में, राइट? और हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। हाँ, बट आपको पता है अर्थ की स्पीड क्या है? किस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है? किसी को पता है? 67,000 miles per hour. That is the speed with which the earth is moving, and it is spinning as well. वो स्पिन भी कर रही है कितने? 1000 miles per hour पे स्पिन भी कर रही है और घूम भी रही है। अभी अविराज ने लिया था वहाँ पे लूना पार्क में, इसने वो झूला लिया, उसके बाद इसने वॉमिटिंग करी, क्योंकि वो ऐसे भी घूम रहा था और ऐसे भी घूम रहा था। राइट? सो हमें तो वॉमिटिंग नहीं आ रही है यहाँ पर बैठे हुए। सो हाउ इट इज? किसी को उल्टी तो नहीं आ रही है ना यहाँ पे? नहीं आ रही। कितना प्रिसाइज फ्लॉलेस डिजाइन है भगवान का, राइट? सो ये इन लॉज को कौन डिफाई कर सकता है? रजनीकांत। सिर्फ रजनीकांत ही डिफाई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये बॉलीवुड या रजनीकांत, isn't it? वो क्या करता है? वो गोली मारता है ना, तो अगर सामने 3 लोग खड़े हैं, अब गोली एक है उसके पास, एक गोली है और एक चाकू है, क्या करेगा? वो गोली मारेगा, उसके बाद चाकू मारेगा। हाँ, तो एक गोली इधर, एक गोली उधर और चाकू तीसरे आदमी को। सो ये वाले जो लॉज हैं, ये सिर्फ हमारे बॉलीवुड वाले ही डिफाई कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, isn't it? So laws of physics हैं, reflection, refraction, they are all perfectly working fine.
जापानीज ने इंस्पिरेशन लिया ना रजनीकांत से, वो कह रहे हैं वो क्योंकि बहुत मेटिकुलस हैं वो, तब वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें भी थोड़ा हटके चाहिए, तो रजनीकांत से इंस्पिरेशन ले रहे हैं वो राइट. सो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, फिर लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं, राइट. somebody is there who is making sure that these are working, right. So he is not a lawmaker and law keeper as well, isn't it? So this is how God makes sure that the law is implemented, isn't it? Now, organizer and designer. We'll go quickly, or we can cover it next time as well. If you have any questions, we can take questions. नहीं है तो we can go ahead. हाँ, 1 मिनट. हाँ जी बोलिए. इधर. हाँ जी. जैसे आपने बोला मैक्स मिलर 12 साल गया इंडिया में, रह के आया, संस्कृत सीखा. हाँ. तो भगवान ने उसको रोका क्यों नहीं? फिर ये सब आता ही नहीं फिर. करेक्ट. वो जो थर्ड पॉइंट था ना, व्हाई देयर इज सफरिंग एंड व्हाई गॉड इज नॉट इंटरवीनिंग, सो विल डिस्कस दैट इन डिटेल. कि भगवान कितना इंटरवीन करते हैं, क्यों करते हैं, कब नहीं करते, कब करते हैं, वो सारी डिटेल विल डिस्कस. यस माता जी. ध्रुव तारा भी हमारा यही है ना प्लैनेट्स में. तो भगवान विष्णु जी ने उनको दिया था वो एक पूरा प्लैनेट. हाँ. उन्होंने दिया था ना. हाँ. तो ये भगवान ने पूरा एक प्लैनेट भी उनके नाम पर ही दे दिया. तो इसमें तो फिर तो वो खुद ही हैं, तो कुछ स्टोरी है ना इसकी. हाँ. ध्रुव की स्टोरी है. हाँ. वो भागवतम में आती है. तो ध्रुव तारा को पोल स्टार भी बोलते हैं. पोल स्टार. सो ध्रुव तारा ऐसा तारा है, इट्स अ यूनिक स्टार जो कि नहीं मूव करता. इट स्टेज देयर एंड ऑल अदर luminaries they revolve around that star, around that planet, that lok. Yeah. So that is a special. It has a special position. We'll discuss maybe in future classes. जब हम ध्रुव महाराज का पास टाइम we'll discuss. Then we'll discuss that. तो जैसे बोलते हैं कि ये जो हम गैलेक्सी देखते हैं, ये तो एक छोटा सा एक गैलेक्सी जो हमें पता है, मतलब बाय साइंटिफिक अगर हम जाएं तो देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, और जो कि हमें पता ही नहीं है. तो सब भगवान जी अकेले संभाल रहे हैं कि नहीं, ये 33 करोड़ देवी देवता कब काम आएंगे? ओह अच्छा ठीक है. अपने सबको उनको पोर्टफोलियोज दे रखे हैं. विल डिस्कस दैट एज वेल. एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक. इट्स नॉट तभी ये इतने, हम जो सांस भी ले रहे हैं, हम जो ये मैं हाथ उठा पा रहा हूँ ना, इसके पीछे भी देयर आर 3 demigods which are making this happen. So that is why there are 33 crore. अच्छा, तो ये बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं को शांत करके रखो. हाँ, पर वही हाउ कैन यू डू दैट, उसका भी तरीका भगवत गीता में दिया है कि क्या आप 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे शांत कर सकते हो. राइट. के ऊपर एक आया था कि कोटि है, तो वो कोटि है, कोटि मतलब टाइप्स. इट्स नॉट लाइक, इट्स नॉट इन crores. एक्चुअली 33 करोड़. हाँ जी, कोटि है वो. कोटि मींस टाइप. सो एक्चुअली ओनली 33 गॉड्स आर देयर, नॉट 33 crores. वैसे there are actually 33 crore देवी देवतास, एंड बहुत डिटेल में है. उनके नाम भी हैं, उनके नेम्स भी मेंशन्ड हैं, और उनके फंक्शंस भी मेंशन्ड हैं कि एक एक देवता का क्या काम है. जैसे हम बोलते हैं, मेरा हाथ ऊपर उठा रहा हूँ, इसमें भी 3 डेमिगॉड्स हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता, बट देयर आर. जैसे कि हम बोलते हैं कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं. तो अगर गौ सेवा करो तो गौ सेवा. हाँ. तो वही जैसे कि वहाँ से कहीं ना कहीं जैसे कि ऐसे आया था कि कुछ जैसे कि वही व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज जैसे भी. हाँ तो सो यही ना, ये हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, दीज आर आवर सोर्सेज. एक्चुअल स्क्रिप्चर्स कभी हमने खोल कर देखे ही नहीं. तो अगर हम एक्चुअल स्क्रिप्चर्स खोल के देखेंगे, देन विल कम टू नो कि एक्चुअल में है क्या. नहीं तो कोई भी हमें बिग बैंग या डार्विन आके चिपका जाएगा हमारे बच्चों को, और वो उसी को ही मानेंगे. राइट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ और एनी बेसिस. हमारा कोई बेसिस है ही नहीं ना. व्हाट्सएप हमारा बेसिस है, यूट्यूब हमारा बेसिस है.
कोटि हो गया उसका अपभ्रंश करके, इट्स लाइक अ रुद्रा, इंद्रा, अगस्त्य, ऐसे 33 है जो उनका अपभ्रंश करके सबने 33 करोड़ बना दिया उसका। हाँ, तो उनको आगे जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री है, आगे उसने आगे मिनिस्ट्री दे दी, छोटा मिनिस्टर, उससे छोटा मिनिस्टर। सो हर एक डेमी गॉड्स की सेम पोटेंसी नहीं है। कोई जैसे वरुण देव हैं, उसको विंड का डिपार्टमेंट दे दिया, लक्ष्मी जी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया। सो विल डिस्कस इन डिटेल कि हाँ, वो पूरा उसमें ऑर्ग चार्ट है उनका, राइट। सो जो IT में होगा ना ऑर्ग चार्ट, तो वो पूरा ऑर्ग चार्ट है कि किसको क्या क्या पोर्टफोलियो मिला है और उसकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड वाई, वो सारा हम डिस्कस करेंगे एंड विल कम टू दैट सेक्शन। तो अपने इसमें इतने सारे जो ग्रह हैं, तो सिर्फ पृथ्वी पे ही क्यों ह्यूमन, Exactly, and we'll discuss that in our next slides, just next 2-3 slides. Exactly, वही seeing is believing ना, उस पे भी आएंगे, seeing is believing पे आएंगे हम next lecture में आएंगे seeing is believing पे, right? So अगर sun, ये जो आपके to answer your question प्रभु, क्या पूछा था आपने, सॉरी? बाकी जो ग्रह है, हाँ, उस पे लाइट नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। वो अर्थ का डिस्टेंस जो है प्रिसाइज है वो डिस्टेंस। अगर सन 1 मिलीमीटर पास आ जाए तो अर्थ विल बर्न। अगर सन 1 मिलीमीटर दूर चला जाए विल फ्रीज टू डेथ। सो दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, राइट? सो दिस इज हाउ गॉड हैज क्रिएटेड इट। एंड वो तो हमें इस अर्थ पे हमारी लाइफ है जहाँ पे हमें ऑक्सीजन चाहिए, जहाँ पे हमें ये चाहिए, ये ऐसा पानी चाहिए। और जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर जो इनहेबिटेंट्स हैं, दे डोंट नीड ऑक्सीजन, दे डोंट नीड वाटर। आपको पता है एक फायर बग होता है, वो फायर में रहता है। सन प्लैनेट पे भी इनहेबिटेंट्स हैं। वी कैन नॉट इवन गो क्लोज टू द सन। हम जल्द न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहे हैं वहाँ पर। बट इट इज मेंशन्ड दैट सन प्लैनेट पे भी इनहेबिटेंट्स रहते हैं। और उसकी क्या एग्जांपल है? फायर बग। एक बग है जो फायर में एग्जिस्ट करता है, who thrives in fire. So उसके बहुत सारे हमारे एनिमल स्पीशीज में there are so many instances जो कि हमारा फेथ बढ़ाते हैं। फिश गिल्स हैं, लंग्स नहीं है, पानी में जिंदा रहती है ना वो, हम नहीं रहते पानी में जिंदा। वो कौन सी है वो जेली फिश, उसका हार्ट नहीं है, बिना हार्ट के काम कर रही है ना, वो जिंदा रह रही है वो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बोलते हैं ना, वी नीड टू नो मोर। जैसे माता जी ने बोला ना कि गैलेक्सीज हैं। अभी एक और नई गैलेक्सी, अभी मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, एक और नई किसी ने बहुत अच्छा टेलीस्कोप बनाया, उससे उसको एक और गैलेक्सी दिखी है। सो वी नीड टू नो मोर। मल्टीवर्सेस, या राइट। सो shall we stop here? Prabhu is looking at me. All right, so I'll just briefly summarize कि आज का जो की टेक अवे जो मेरे लिए है, I'll tell that कि does God exist, ये मुझे पता करना बहुत ज़रूरी है for my children and for my own faith as well. राइट, ताकि मैं उस चीज़ को हश हश ना करूं और मैं ओपनली आई शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं ओपनली जाके बोल सकूं कि हाँ, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूं और मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही है। शर्म नहीं आनी चाहिए, हमारी रूट्स हैं ये और इससे हमें बहुत कुछ मिल रहा है, राइट। तभी मैंने वो ब्रिटिशर्स की एग्जांपल दी कि हमारे पास बहुत कुछ था जो कि हमने ये वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करके हमने खो दिया है, राइट। इसीलिए डज गॉड एग्जिस्ट, इसका साइंटिफिक प्रूफ हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने फेथ एंड कन्विक्शन के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। दिस इज माई की टेक अवे फॉर टुडे। एनीवन एल्स वांट टू शेयर देयर की टेक अवे? यू आर मोर देन वेलकम। Can you, who is the mic? Yeah. So the existence of God is a very
very common example is our own human being, our body system. Hmm. We got 11 system in our body, from nervous system to the skin system. So who is created? Science didn't create it to us. Correct. How did it happen? If we eat and अगर वो हमारी अन्न नली में नहीं गया, अगर वो श्वास नली में चला गया एक अन्न का दाना, it's immediate death. Correct. वो we'll cover that point, Mataji, in our next few slides when we have design. Yeah. How our body is designed, how this universe is designed. So design पे जब आएंगे, we'll cover that part. Thank you. Yeah, thank you for sharing. Yeah. All right. So we'll stop here. Hare Krishna. Thank you.